کہ اگر ان کی باڈی مضبوط ہو، جسم خوبصورت اور موٹا ہو، تو وہ بٹن کھول کر کے پورے محلے کی گلیوں میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ کر کے تم کوئی زمین تو چیر نہیں لوگے، اس لیے کہ سینہ تان کر، بٹن کھول کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک جوان کو سینہ تان کر زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ چل، کیونکہ اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے، ایسے اکڑ کر نہ چل۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بہت مالدار گھرانے کا فرد ہے۔ تو اس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد کو جواب دیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد فرماتے ہیں ہاں بیٹے تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، کہ تیری ابتدا جو ہے وہ پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے۔ تو جس کی ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ کر کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اللہ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا۔ لڑکے تو لڑکے، نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نے تھوڑی سی خوبصورتی دے دی ہے تو اس تھوڑے سے حسن پر لڑکیاں پھولے نہیں سماتی اور گلے میں دوپٹہ، لمبے بالوں کی نمائش، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، یہاں کھڑی وہاں کھڑی، برتن دھلے تو گھر کے باہر گلی کے اندر بیٹھ کر، کپڑے دھلے تو گھر کے آنگن میں، باہر جانے سے زیادہ دلچسپی، گھر میں رہنے کے اندر دل نہیں لگتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ آج کل کی بچیوں کا یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خوبصورت ہیں، جب تک کہ چار لڑکیاں ہمیں نہ دیکھیں، محلے کے لڑکے ہمیں نہ دیکھیں، تو پھر ہمارے حسن کی تعریف کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محلے کے لوگ ایسے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ اس محلے کے لوگ ایسے ہیں، ایک عام بات کرتا ہوں کہ لوگ اس طریقے کی فکر لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کا ذہن بچیوں کا بنتا جا رہا ہے، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ناول پڑھ کر اور مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر اس طرح کی سوچ و فکر بنتی جا رہی ہے کہ اگر حسن ہے تو نمائش ہونی چاہیے، اگر خوبصورت جسم ہے تو نمائش ہونی چاہیے۔ لیکن قوم کی ان بیٹیوں کو بتا دو، اے قوم کی بچیوں، جسم کی نمائش کرنا یہ کوئی فن نہیں، جسم کی نمائش کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، جسم کی نمائش کرنا اللہ اکبر اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خوبصورت عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ انسان کو گناہ جوانی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے انسان کو گویا کہ اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر انسان محفلیں پسند کرنے کی بجائے تنہائی پسند کرتا ہے، پھر انسان قہقہے کی محفل پسند کرنے کی بجائے تنہائیوں کے اندر سسکیاں لیتا ہے،
बेचैन और बेकरार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरज हमेशा सर के ऊपर नहीं होता। एक वक्त वो आता है सबको तपा देने वाला, सबको हरारत देने वाला, सबको तपिश देने वाला सूरज थोड़ी देर के बाद ढल जाता है। ऐ इंसान, ये रोजाना ढलने वाला सूरज तुझे पैगाम दे रहा है कि जैसे मैं ढल रहा हूँ वैसे तेरा शबाब भी ढल जाएगा, वैसे तेरी जवानी भी ढल जाएगी। और याद रखना, ढलने वाली जवानी की तरफ लोगों की तवज्जो तो हट ही जाती है, लेकिन जिन्होंने जवानी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी की, जिन्होंने गुनाह किया, रब के गज़ब को दावत दिया, न वो दुनिया के रहते हैं, न आखिरत के, न समाज के रहते हैं, न खुद के। इसलिए याद रखो, न लड़कियां अपने हुस्न पर इतराए, न नौजवान लड़की अपने हुस्न पर गुरूर और तकब्बुर करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जब तुम्हें हमने इसी मिट्टी से पैदा किया, मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, तो फिर फरमाता है वफीहा नुईदुकुम, पैदा तो तुमको मिट्टी से किया, लेकिन दोबारा फिर तुम्हें इसी मिट्टी में मिला दिया जाए। अब बताएं, मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान, उसको तो गुरूर ज़ेबा था भी नहीं, लेकिन अब वो दोबारा फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा। सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तसव्वुर कीजिए कि इंसान तेरा ये 5-6 फुट का वजूद, जिस पर तू कितना नाज करता है, जब तक तेरी सांसें चल रही है, अगर बदन पर थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो तू फौरन भवें चढ़ा करके साफ करता है। करना भी चाहिए, किसी को मैले कपड़े पसंद तो नहीं, लेकिन मिट्टी हल्की सी लगती है तो हम फौरन जो है अपने वजूद से मिट्टी को साफ करते हैं। एक वक्त वो आएगा जब ये पूरा वजूद मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, ये पूरा वजूद मिट्टी में मिलेगा, और जिस जगह मिट्टी में मिलेगा उसी जगह को कब्र कहते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी में मिला देंगे। एक दिन आप पर भी, हम पर भी, सब पर आएगा कि हमें मिट्टी हो जाना होगा। सोचिए, वो लम्हात कितने दर्दनाक होंगे, वो लम्हात कितने कर्बनाक होंगे, ना जहां कोई दोस्त होगा, ना जहां कोई यार होगा, ना जहां कोई साथी होगा, ना जहां कोई संगत होगी, ना दौलत की रानाइयां होगी, ना माँ बाप की शफकतें होगी, ना दोस्तों की टोलियां होगी, ना अपने बेगानों की कोई जमात होगी, कुछ नहीं होगा। वहां तन्हा 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 अकेले इंसान। जरा सोच, अगर तू 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अपने घर के अंदर अकेले बैठे तो तू बोर हो जाता है, लेकिन उस कब्र के अंदर तुझे बरसों बरसों, अल्लाह अकबर, बरसों सिर्फ नहीं बल्कि कई 100 बरस, बल्कि कई 1000 बरस तुझे उसी कब्र के अंदर पड़े रहना है। और वहां कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं, बस वहां तो फैसला या तो तेरे अच्छे अमल की बुनियाद पर होना है, या तो तेरे बुरे अमल की बुनियाद पर होना है। हाँ, वहां तो छोटी छोटी बातों पर अजाब होना है। जिसको तू बहुत छोटा समझ रहा था, उन छोटी छोटी चीजों पर भी तुझे अजाब दिया जाएगा। उसी को अजाब कब्र कहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की कब्र की पहली रात बड़ी दर्दनाक और भयानक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। मुसलमानों सोचो, पहले तो रात है और उसके बाद वो रात ट्रेन की रात नहीं, वो रात कब्रिस्तान की रात नहीं, वो रात सफर की रात नहीं, बल्कि गैर का नबी आलिमे मा काना व मा यकून रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, इंसान की कब्र की पहली रात बड़ी भयानक और बड़ी दर्दनाक होती है। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। होटलों पर बैठ करके घंटों गाने सुनने वालों, पुराने गानों के नाम पर गाने और गज़लों में डूब जाने वालों, उन मुशायरों
में जाने वालों, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर शायरी के लिए औरतों को मदऊ किया जाता हो और फिर औरतों को बिठा करके गंदी गलीज गजलें पढ़ी जाती हो, और वहां पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, बड़ी बड़ी टोपियां वाले, बड़े बड़े हाजी व नमाजी औरतों के दरमियान बैठ करके उनको गजलों पे दाग देते हैं। जरा सोचो, मुशायरे की रंगीन रातों में गजलों में डूबने वालों, शराब और शबाब की बात करने वालों, गाने गजलों में डूबने वालों, फिल्मों में डूबने वालों, हाथों को मोबाइल को हाथों में लेकर के घंटों गंदी तस्वीरें देखने वालों, यहाँ मुझे एक हदीस याद आती है। लोगों का हाल ये है, दिन की इबादत गुजार हैं और रात के अय्याश हैं, दिन के हाजी नमाजी हैं और रात के पापी हैं। हमारे दिन वलियों जैसे हैं, हमारी रातें शैतानों जैसी है। अल्लाह अकबर। लोग सबके सामने नेकी करते हैं और तन्हाइयां गुनाहों में डूब करके करते हैं। एक हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ की जो आज के दौर की अक्कासी करती है, अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उनकी नेकियां अल्लाह ऐसे उड़ा देगा जैसे धूल को हवा में उड़ा दिया जाता है। मेरे आका से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जब लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लाएंगे तो उनकी नेकियों को यूं उड़ा दिया जाएगा जैसे धूल को हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, उनका गुनाह क्या होगा? आका फरमाते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते होंगे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते होंगे, वो कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी भी मानते होंगे, वो तुम में से होंगे, अपने आप को मोमिन कहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे दरमियान रहेंगे तो वो नेकियां करेंगे, और जब वो अकेले में होंगे तो वो गुनाहों के अंदर डूब जाएंगे। तन्हाई में गुनाहों में डूबने वालों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उड़ा देगा जैसे धूल को हवा में उड़ा दिया जाता है। आप मुझे बताएं, हमारी महफिलों में कोई तस्बीह पढ़ रहा है, मस्जिदों के अंदर कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, लेकिन जब हमें तन्हाई के अंदर अपने कमरों में मौजूद होते हैं तो हम कैसे होते हैं ये हम अपने आप को खुद जानते हैं। हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। लोगों से डर के गुनाह छोड़ने वालों, अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ दो। जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ता है, अल्लाह उसको अपना वली बना लिया करता है, उसको जहान में मकबूलियत अता किया करता है। वो जमीन के ऊपर रहता है तो भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो जमीन के अंदर जाता है तो भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अर्ज ये कर रहा था, मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संभालने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया, अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों,
अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और फिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती हैं। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाते। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूल कर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीख वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन अमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, फिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती है। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता। और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अज़ाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है? वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अज़ाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते। सोचो, गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है, वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान, तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया,
तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाह अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया औलिया किराम का, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया, तूने कब्र के लिए क्या किया? अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पे मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो आंख से देखता नहीं, जो कान से सुनता नहीं, जो जबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता उस पे मुसल्लत किया जाता है और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक गुजा जब वो उसके वजूद पे मारता है तो वो ऐसे पिस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके नमाज फजर तर्क करने वालों, जरा उस चाबुक और उस गूजे का तसव्वुर करो, सोचो और गौर करो कि क्या ये नाजुक वजूद, ये छोटा सा जिस्म क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं और हरगिज नहीं। तो फिर ये रंगरेलियां क्यों है? ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? ये घरों पे लगे हुए तुम्हारे एंटीने, ये एंटीने नहीं, ये एरियल नहीं, ये जहन्नम के सामान है। तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हें डिश लगाने पे मजबूर करती है, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हें मजबूर करते डिश लगाने पर, उसमें 100 से ज्यादा चैनल पर गंदी नंगी और आवारगी की फिल्में देखने वालों, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं। खुदारा जरा अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल के बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते, 10 साल के बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते, लेकिन मौत ने तो कोई वक्त न दिया, किसी को मौका न दिया। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इसे पर कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। टीवी देखने वालों, मोबाइल को हाथ में लेकर के इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखने वालों, जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और उसी वक्त अल्लाह न करे तुम्हें मौत आ गई, उस वक्त जब तुम गंदे मनाजिर देख रहे हो या फिल्में तुम नंगी और आवारगी की देख रहे हो, उसी वक्त तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो क़यामत के दिन उसी हालत में